Hello friends, if you really want to understand simple chart analysis for making tons of money, then remain with me throughout the video. In order to have double safety of investments in trading, we will use weekly charts and moving average of 2 only for swing trading. Friends, we will check on buy signals, resistance, chart patterns, short term and long term trends wherever required. Once again, please remember we are on weekly charts with moving average of 2 and not on daily charts for any analysis. So let's get to our charts analysis. In the previous video we had done 25 Nifty 50 stocks, and today also we do 25 Nifty 50 stocks. So we start here with the Titan today, and in Titan, friends, you can see here there is a decline in the trend. The moving average of 2, which is this pink line, and the price, both are on the declining side. The mouth here is actually open, so buy signal is not indicated. दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइज को अगर आप देखें तो ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर है और इसने यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी दिया है, तो अभी इसका बाई तो बनता नहीं है। हाँ, जब ये पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, इन द सेंस मीन्स इसमें बाई सिग्नल तब लगेगा जब ये जो प्राइस है और ये जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है ये इस तरह की हो जाएंगी। ख्याल रखिए, दोनों को एकदम पैरेलल होना है और ऊपर की डायरेक्शन में होना है। फिलहाल इसमें कोई बाय सिग्नल ऑन वीकली चार्ट्स नहीं लगा है। Friends, this is Power Grid, one of the Nifty 50 stocks. These are the weekly charts with a moving average of 2 for swing trading. Here, if you really see what has happened is, it is giving here a head and shoulder like. So what I am saying here is the buy signal actually is indicated. The price will come down and again the price will go up. It can go up to 305, right? So at present, if you see, the price is in the up direction, the moving average of 2 on weekly charts in the up direction, so the buy actually is indicated. But mind you, after some time there will be a cross and then there will be a further rise up to 305. At 305 you can take a different position, whether to continue with it or not. यहाँ ये स्टॉक हम देख रहे हैं JWS स्टील का। JWS स्टील के अंदर अगर दोस्तों अगर हम देखें तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड तो इसका एकदम, मैंने यहाँ देखिए पीछे के 2 ज्वाइन कर दिए हैं, तो ट्रेंड तो इसका एकदम पॉजिटिव है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो स्टॉक है ना, ये नियर ऑल टाइम हाई के ऊपर आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये स्टॉक ऊपर ज़रूर जाएगा, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए इसके पास सिर्फ 20-30 रुपये हैं 3% के लिए। 10-30 तक ये स्टॉक जा सकता है। मुझे लगता है कि क्योंकि ये ऑल टाइम के नज़दीक है, इसको थोड़ा नीचे गिर जाने दीजिए। उसके बाद इसके अंदर जब भी दोस्तों इस तरीके का बाई सिग्नल लगे, दोनों लाइन ऊपर की तरफ पैरेलल हो जाएं, तभी इसको आप बाई करिए। लेट द प्राइस फॉल। ये स्टॉक है, अदानी पोर्ट का स्टॉक है। ये जो स्टॉक है ये जो शॉर्ट टर्म के अंदर भी ये फॉल कर रहा है, और मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक है इवन इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो द स्टॉक इज शोइंग ए डाउन ट्रेंड। तो इसके अंदर तो अभी खरीद तो बिल्कुल बनती है। ये देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर भी जो स्टॉक है ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें फॉर ए वेरी शॉर्ट टर्म, तो इसने यहाँ एक डबल बॉटम बनाई है। डबल बॉटम इसने, इसको ज़रा निकाल देता हूँ यहाँ से, तो डबल बॉटम बनाने के पास ये ऊपर गया है। यहाँ जो है इसने एक नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया है। तो मुझे लगता है कि जब तक इसकी रेजिस्टेंस 1155 के ऊपर नहीं जा सकती, तब तक आपको वेट करना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये जो नीली लाइन है और लाल लाइन है, नीली लाइन प्राइस लाइन है और जो रेड लाइन है वो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है ऑन वीकली चार्ट्स। जब तक ये दोनों की दोनों ऊपर की तरफ ना हो जाएं, तब तक इसके अंदर बाई ना करें।
Friends, it is Tata Motors. The results of Tata Motors were not very good for the last 2 quarters, and you can see in the long term also this stock actually is falling very steeply. Here you can see there is no respite. The stock actually is falling. So it is falling in the long term, it is falling in the short term. Both the stock actually is falling. Although here it has given, I will not say it has given a buy signal. The buy signal will be generated only after 720. Why I am saying you have to wait before that? Because the stock basically is weak. Until it decisively breaks the trend, I think one should not venture into buying the stock. तो इसके अंदर आप थोड़ा वेट करिए, हो सकता है ये गिर जाए, लेकिन इसका बाई तो है, वीक स्टॉक होने की वजह से 720 के नीचे तो इसका बाई कभी भी नहीं बनेगा। कोल इंडिया है, लॉन्ग टर्म में देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से ये गिरता चला आ रहा है, शॉर्ट टर्म के अंदर भी गिर रहा है। अभी ये स्टॉक है, इसने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में तो मैं बोलूँगा इसने एक पॉजिटिव दिया है यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन एक मिनट इसको थोड़ा मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। इसने ऊंचे जाने की कोशिश तो करी है, अभी दूसरा तो नहीं आया है इसका, ये शॉर्ट टर्म में तो ये अप ट्रेंड के अंदर आ गया है, लेकिन क्योंकि इसने यहाँ पर इनका क्रॉस लगने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक जो स्टॉक है दोनों के दोनों, ये जो प्राइस लाइन है और मूविंग एवरेज ऑफ 2 ऑन वीकली चार्ट्स है, उनका डायरेक्शन अपना हो जाए। सो प्लीज वेट। अगला स्टॉक है एशियन पेंट का। एशियन पेंट के रिजल्ट जो हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं, और ये देखिए ये शॉर्ट टर्म के अंदर भी डाउन ट्रेंड में है और ये लॉन्ग टर्म के अंदर भी है डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो बाई तो इसका किसी कीमत पे बनता ही नहीं है। मुझे लगता है ये स्टॉक को इग्नोर कर देना चाहिए फॉर क्वाइट सम मंथ्स, या जो बहुत सारे एग्रेसिव बायर्स हैं अगर वो चाहें तो इसको 2-3 साल 4 साल 5 साल का अगर वो व्यू रखते हैं तो ही इस स्टॉक में हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ख़राब आ रहे हैं। Q3 में भी रिजल्ट्स ख़राब थे, Q2 में भी ख़राब थे, तो उसको तो अभी हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है मुझे। बाकी इट इज़ योर इंडिविजुअल चॉइस। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो स्टॉक है ना, कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं खरीदा जाता, आपका जो पैसा है वो गिर जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो स्विंग ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, उनको तो दोनों तरफ पैसा मिलता है, लेकिन खतरा भी उतना ही है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो पैसा बनता है ना, वो सिर्फ ये देखिए अप ट्रेंड में पैसा बनता है, और जब गिरता है तो ये देखिए पैसा कितना गिरता है यहाँ पर। सो स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो बिल्कुल आपको अप ट्रेंड के अंदर रहना पड़ेगा। अब नेस्ले इंडिया है, इसके रिजल्ट्स तो ठीक आए थे, लेकिन Q2 के रिजल्ट्स भी अच्छे थे, Q3 के रिजल्ट्स इसके सो थे, तो ये फिलहाल तो ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर है। मुझे नहीं लगता इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, और अगर इस स्टॉक को खरीदना भी है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जब तक 2450 के ऊपर नहीं निकल जाता, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्क टेकिंग ट्रेडर्स हैं, अगर वो चाहें तो थोड़ी सी इसमें निबलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत खतरे से खाली नहीं है। अगला स्टॉक है बजाज ऑटो। क्लियर कट लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर है, और प्राइस और मूविंग एवरेज है वो भी दोनों के दोनों देखिए माउथ ओपन हुआ है यहाँ पर, तो इसके अंदर बाई तो बिल्कुल बनता नहीं है फिलहाल। और मुझे लगता है कि स्टॉक जो है ये और भी गिर सकता है, लेकिन एक बार देख लीजिए कि 7500 के आसपास ये स्टॉक है, और 12600, यानी कि बहुत लंबा जो स्टॉक है ये गिर चुका है, और अगले 4-5 साल के अंदर तो ये कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है ऊपर। तो वेरी लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए तो कभी भी खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, उनके लिए ये स्टॉक नहीं है। दोस्तों, ये वीकली चार्ट्स हैं और मूविंग एवरेज ऑफ 2 मैं आपको दोबारा याद कराना चाहता हूँ, ये डेली चार्ट्स में मैं डील नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट टू कीप डबल सेफ्टी ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। तो ये जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक है। ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में था, यहाँ इसने जो ट्रेंड है उसको तोड़ दिया है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है, ये बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। ठीक है, तो स्टॉक एक्चुअली तो बाई जोन के अंदर है, 280 से लेकर 320 तक जा सकता है। फिर भी मेरा मानना है कि जैसे ही यहाँ पर इस तरीके का क्रॉस ओवर लगे, आप बाहर आ जाइए। टाटा स्टील,
दोस्तों टाटा स्टील जो है हमेशा से जो स्टील है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और जो रेवेन्यूज़ हैं या सेल्स है वो डिपेंड करती हैं चाइना के ऊपर। तो क्योंकि चाइना का बुरा हाल है इसलिए जो स्टॉक है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा है और 6-8 महीने से गिरता ही जा रहा है और इसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो ख़राब आ रहे हैं। बहरहाल ये जो स्टॉक है 130 पे गिरने के बाद इसने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के अंदर अप ट्रेंड लिया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये जो प्राइस और इसका जो क्रॉस ओवर ऑलरेडी लगा टच तो हो गया यहाँ पर, तो जब तक इस तरीके का दोनों का पैरेलल ना हो जाए प्राइस और मूविंग एवरेज ऑफ 2, तब तक इसको ना खरीदें। हाँ 4-6 महीने में इसका जो टारगेट है वो 150 से लेके 180-90 तक ज़रूर जा सकता है। स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना ही बेहतर होगा। दोस्तों ये स्टॉक है ट्रेंड का, बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो आप देखिए कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी इसका डाउन है, और जो अगर मैं इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में अगर आपको बताऊं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी इसका डाउन है। तो इसका ख़रीदना वरीदना तो अभी बनता नहीं है बिल्कुल भी। जस्ट लेट मी शो यू दिस ऑल्सो, राइट। और यहाँ भी जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है, पिंक लाइन और ये प्राइस लाइन नीली वाली फ्लैट है, तो भाई तो बिल्कुल सजेस्ट इसके अंदर होता ही नहीं है। हाँ ये बात ज़रूर है कि जो स्टॉक है जब चलना स्टार्ट होगा तो ये डेफिनेटली आपको 30, 40, 50, 60 कुछ भी दे सकता है ये स्टॉक यहाँ से 70-80% एक साल में। बहुत बेहतरीन कंपनी है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, टाटा की कंपनी है, और फिलहाल इसके अंदर बाय को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन चल रही है और ये जो 1 मिनट एनालिसिस है आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आजकल मेरे दोस्तों ने कमेंट करना भी बंद कर दिया है। प्लीज़ कमेंट, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स वेदर यू लाइक द वीडियो और नॉट, दैट इज़ नंबर 1। और आप क्या चाहते हैं मेरे से वो भी मेरे को ज़रूर लिखिए। ग्रासिम को देखते हैं दोस्तों। ग्रासिम जी भी जो है ओवर ए लॉन्ग टर्म पीरियड तो ये डिक्लाइन के अंदर ही है, और यहाँ पर इसका जो पहला जो लेवल है वो आ रहा है करीब करीब 2440 रेजिस्टेंस, और दूसरा आ रहा है 2500। और ये अगर आप सही मानों में देखें फिलहाल इसने नेगेटिव क्रॉस ओवर भी लगाया है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इससे जो बॉटम है, यहाँ पे लास्ट टाइम बॉटम मारा था और उसके बाद ये ऊपर गया था, यहाँ फिर इसने बॉटम मारा है। तो मुझे लगता है ये 2800 तक आराम से जा सकता है, लेकिन कब जाएगा मैं नहीं कह सकता जब तक शेयर मार्केट उठेगी नहीं। फिलहाल इसको बाई ना करें जब तक कि ये मूविंग एवरेज ऑफ 2 और प्राइस लाइन दोनों ऊपर पैरेलल ना हो जाए। फ्रेंड्स, दिस इज अ स्टॉक ऑफ हिंडाल्को। हिंडाल्को इज इन ए क्लियर कट अप ट्रेंड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज अ नेगेटिव क्रॉसओवर, so buy is not indicated, and buy will be indicated when both the moving average of 2 and the price, they will be in parallel direction like this. So keep waiting. Buy is not indicated on weekly charts. Friends, we are dealing on in this swing trading only, weekly charts and moving average of 2. एंड आई मस्ट टेल यू हियर, अगर लोगों को पैसा कमाना है अगर शेयर मार्केट में, तो सिर्फ अप ट्रेंड के अंदर ही पैसा कमाया जा सकता है। जब ट्रेंड लो होता है ना तो उसके अंदर एवरेजिंग होती है ना उसके अंदर पैसा कमाया जा सकता है। आपके पैसों की ज़्यादा सुरक्षा के लिए मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट्स लिए हैं और मूविंग एवरेज ऑफ 2। दिस मूविंग एवरेज ऑफ 2 एक्चुअली ऑन वीकली चार्ट्स विल होल्ड फॉर एज मच एज 6 months टाइम इट इज सेड, बट वी आर अलर्ट ट्रेडर्स, सो वेन एवर देर इज़ ए क्रॉस वी विल एक्सिट। यहाँ पर अब आप देखिए कि जो टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा का तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, फिलहाल तो कोई लेने का सवाल ही उठता नहीं है। और यहाँ जो मूविंग एवरेज ऑफ प्राइस है वो उसका भी डायरेक्शन डाउन की तरफ है, तो टेक महिंद्रा के अंदर बाई इंडिकेट नहीं हो रहा है। हालांकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पिछले 2-3 क्वार्टर से बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो टेक महिंद्रा है ये इसके यूएस के अंदर भी इसका बहुत बिजनेस है, इसलिए जो यूएस मार्केट की वजह से ये स्टॉक डाउन है। अगला स्टॉक है एसबीआई लाइफ। बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप ये देखिए लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक है और इसमें डाउन ट्रेंड को फिलहाल इसको निकाल देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और ये शॉर्ट टर्म के अंदर भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। दोस्तों अगर आप हकीकत में देखें तो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 और प्राइस दोनों नीचे की तरफ हैं, सो both are declining, everything is declining, the trend is declining, the price is declining, there is no buy in this,
ज़रा संभल के रहिए, इसके अंदर अभी पैसा ना लगाएं। अगला स्टॉक है आयशर मोटर का। शॉर्ट टर्म के अंदर ये अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक आ चुका है, बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है। और अगर आप ये देखें, यहाँ मूविंग एवरेज ऑफ 2 का डायरेक्शन भी अच्छा खासा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसने क्रॉस लगा दिया है तो फिलहाल तो आपको वेट करना चाहिए। जैसे ही ये जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 और ये पैरेलल हो जाए इस तरीके से, तो आप इसको बाय ज़रूर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम 1 मिनट से पहले हर स्टॉक को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, हकीकत में जो स्टॉक की एनालिसिस होती है, दिस शुड बी डन विद इन 5 सेकेंड्स। तो इसीलिए अगर आप ये 50 स्टॉक जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, 25 पिछले वीडियो में बताए हैं और 25 मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, ये जो चार्ट है HDFC लाइफ का, फाइन। सो जब तक ये स्टॉक, देखिए स्टॉक जो है ना, ये थोड़ा वीक स्टॉक है बहुत, मतलब जब गिरता है तो बेहिसाब गिरता है, हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, आज ये 10 साल से कम नहीं है, लेकिन 10 रुपये का जो फेस वैल्यू का स्टॉक है अभी भी जो है 600 के आसपास ही है। तो ज़रा ध्यान रखिए, ये स्टॉक जो है मेरे हिसाब से एक रेंज में घूम रहा है, और जब तक ये 650 के ऊपर 2-3 दिन ना टिक जाए तब तक इसके अंदर बाय मत करिएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप अपने ब्रोकर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं एनालिसिस है, दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पसेस। कोई भी आप बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो यू शुड आस्क योर ब्रोकर। यहाँ पर ये सिप्ला का स्टॉक है, और ये जो है एक लॉन्ग टर्म की डाउन ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड के अंदर भी है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप देख लीजिए आपको बाई करना है कि नहीं करना है। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, स्टॉक को थोड़ा सा नीचे आ जाने दीजिए। दूसरा, ये एक शोल्डर है, दूसरा शोल्डर बनेगा, उसके बाद स्टॉक शूट आउट ज़रूर करेगा। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा 15% की स्टॉक में हाईएस्ट पे गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश तो इस स्टॉक में नहीं है। तो वेट फॉर द स्टॉक। हालांकि थोड़े से हल्के से यहाँ डबल बॉटम लगा के अप ट्रेंड के अंदर आया है, बट बाई इज़ नॉट इंडिकेटेड। श्रीराम फाइनेंस बड़ा दबंग स्टॉक है, हमेशा रिजल्ट इसके ज़ोरदार आते हैं, क्योंकि मार्केट गिर रही है इसीलिए ये स्टॉक भी गिर रहा है, वरना कोई वजह नहीं है कि ये स्टॉक अपना जो पिछला है 750 के करीब का इसका वो था, उसको ये ना तोड़ता। बहरहाल ये जो स्टॉक है, इसने अभी जो क्रॉस ओवर है नेगेटिव लगा है। जैसे ही ये स्टॉक ऊपर, ये जो प्राइस और मूविंग एवरेज ऑफ 2 इस तरह से पैरेलल हो जाए आपस में, तब आप इसको बाय कर सकते हैं। सो वेट फॉर द बाय सिग्नल। फिलहाल जो क्रॉस ओवर है वो नेगेटिव है स्टॉक के लिए। ब्रिटानिया, ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म जो है, यहाँ से देखिए तो भी डाउन ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म में भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। मुझे लगता है इसके अंदर कोई बाय सिग्नल नहीं लगा है फिलहाल। अगर आप देखिए तो यहाँ भी जो क्रॉस ओवर है स्टॉक के लिए नेगेटिव ही लगा है, तो प्लीज़ डोंट बाय, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, हम सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ऑन वीकली चार्ट्स एंड मूविंग एवरेज ऑफ 2 टू कीप योर इन्वेस्टमेंट डबल सेफ। तो यहाँ देखिए जो स्टॉक था ये अप ट्रेंड के अंदर गया था, उसके बाद यहाँ से क्लियर इस स्टॉक ने डाउन ट्रेंड दिया है टाटा कंज्यूमर ने, और यहाँ भी दोनों जो प्राइस, नीली जो है वो प्राइस है और पिंक जो है वो मूविंग एवरेज ऑफ 2 ऑन वीकली चार्ट्स है, दोनों की दोनों खुली हुई हैं। नीचे की तरफ स्टॉक गिर सकता है, तो मुझे लगता है द ट्रेडर शुड कैन अवॉइड द स्टॉक एट प्रेजेंट टिल ये जो दोनों की दोनों जो हैं ये अप ट्रेंड के अंदर आ जाए। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पैसा सिर्फ अप ट्रेंड में बनता है, डाउन ट्रेंड के अंदर ये क्लियर कट कंफर्म्ड लॉसेज ही होते हैं। तो कोई भी एंट्री लेने से पहले शेयर जो है उसको अप ट्रेंड के अंदर आ जाने दीजिए। ये एक और स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी का, ये हमेशा तकलीफ में रहता है, मेरे को तो लगता नहीं है इस स्टॉक के अंदर कभी भी घुसना चाहिए। बहरहाल फिलहाल तो ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ भी दोनों इसकी जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 और प्राइस जो है ये खुली हुई है दोनों, नीचे प्राइस स्टॉक गिर सकता है, इसके अंदर बाय फिलहाल नहीं बन सकता है। दोस्तों, क्या अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, आपने कमेंट लिखा कि नहीं, लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए, आप पैसा कमा के ले जाएंगे। शेयर मार्केट में पैसे से ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है, और दूसरी चीज़ जो है वो ये होती है कि लिटिल नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हमने एनालिसिस, तो अगर आप 2 वीडियोस देखेंगे तो यू विल बी एबल टू एनालाइज व्हेन इज़ द एंट्री एंड व्हेन इज़ द एग्जिट, और पैसा कमा के आप ज़रूर ले जाएंगे।
दोस्तों सबसे सेफ जो ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में वो होती है ऑन वीकली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स के अंदर जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो सब के सब न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और जो डेली प्राइस फ्लक्चुएशन है उससे भी हम बच जाते हैं। अगला स्टॉक देखते हैं हम हीरो मोटोकॉर्प का। ये परपेचुअल रिजल्ट्स इसके ठीक आते हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, यूएस की वजह से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ भी देख लीजिए जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 और प्राइस है दोनों का मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है और ट्रेंड भी डाउन है, तो कंफर्म डाउन ट्रेंड है, तो इसलिए स्टॉक में अभी बाय बिल्कुल भी बनता नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल, रिजल्ट्स इसके हमेशा अच्छे आते हैं। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत एवरेज थे, इसलिए प्राइस डाउन है और वैसे भी मार्केट डाउन है, इसलिए जो स्टॉक है ये अपने जो हाई है उससे करीब करीब 16-17% नीचे आ चुका है। फिलहाल इसके अंदर कोई बाई नहीं है, नेगेटिव क्रॉसओवर है और डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो जब तक ये जो ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं हो जाता है इसके अंदर कभी एंट्री मत लीजिए। तो दोस्तों हमने आज फिर आपके साथ डिस्कस किए हैं 25 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 50 स्टॉक में से मुश्किल से 5 स्टॉक ऐसे हैं जो कि अब ट्रेंड के अंदर है। तो निफ्टी में आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी का हाल कैसा रहने वाला है आपको पता लग गया होगा। बस जब तक निफ्टी के 25, 30, 35 स्टॉक्स ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे तब तक जो हमारा अप ट्रेंड है वो कंफर्म नहीं होता है शेयर मार्केट का। चलिए ये तो रही मेरी बात, बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और एक कमेंट लिखिए हाउ वाज द वीडियो नंबर 1 और आप क्या चाहते हैं। ठीक है, मेरे साथ रहिए, हम दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे शेयर मार्केट के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। नमस्कार, जय श्री राम।